Hello, how are you all? I hope you all are doing well and welcome the platform of IBE. Now, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग आज एक बहुत प्यारा सा वीडियो ले रहे हैं जिसका नाम है मानसून बिकॉज ऑफ रिमूव योर फियर अबाउट द मानसून। तो हम लोग पहला टॉपिक ले रहे हैं मानसून। तो मानसून वी ऑल आर नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द climatic changes and the rainfall pattern and vegetation and biotic and abiotic components which are changing in the Indian subcontinent. बहुत important है समझना मानसून। So without wasting of any time, now we are going to discuss the basic meanings of monsoon. Monsoon क्या है? What is monsoon? And in a simplest way, बहुत easy मैनर में हम लोग ये सीखेंगे कि भाई मानसून का एक बेसिक मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोलिंग और अफेक्टिंग द मानसून। आई होप दिस आवर लिटिल bit push and effort it give you a lot of confidence. So now we are going to discuss what is monsoon. What is monsoon? क्या है मानसून? What is monsoon? And then we discuss the factors affecting the monsoon, or you can call it the factors which are controlling the monsoon. The factors which are controlling the monsoon. Okay, and then we have to discuss, हम आगे डिस्कस करेंगे the simplest form of explanation which is the classical theory or the thermal theory. Thermal concept about मानसून एक्सप्लेनेशन। मानसून को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सम बेसिक्स, वी हैव वन बाय वन डिस्कस ईच। हम लोग एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर going to discuss the first word. What is monsoon? Before we are starting the monsoon, firstly I want to tell you the background of monsoon. The monsoon word is mentioned into the Rig Vedas. Firstly you have to know and remember the word monsoon. Monsoon का जो mention है, explanation है, वो ऋग वेदास में भी है। The word monsoon is derived the word monsoon derived from Arabic word mausim, which means season. So what is the meaning of monsoon? Monsoon word derived from the Arabic word which means season, and I want to explain something about the monsoon. Monsoon is a progressive wind. Here we are using two terms, one is progressive and second one is wind. What is the means of wind? क्या मतलब होता है wind का? तो here we are write down two words. यहाँ देखो हम लोगों ने दो बातें लिख दी, एक air और एक wind. What is the difference between air and wind? Firstly, we all are know that the air, or you can say that the air which generates because of the pressure gradient force, जो भी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है प्रेशर और टेम्परेचर के डिफरेंस से, उसी को एयर बोलते हैं। बट एयर ऑलवेज मूव्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन,
वर्टिकल डायरेक्शन, एयर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है, और विंड ऑलवेज मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो हवा चलती है उसको विंड बोलते हैं, और जो हमें महसूस नहीं होता है, विच कैन नॉट बी फील बाय अस, तो उसे बोलते हैं एयर। ओके, हियर वी आर यूजिंग द टर्म प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? मानसून इज अ प्रोग्रेसिव विंड। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है द विंड विच change its direction, the wind will change its direction according to season. What is the means of according to season? The wind which change its direction according to season, that wind is known as monsoon or the progressive wind. Let me give you the example. एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि what is the means of progressive wind. During the summer, during the summer, what will happen? This is our India, and this is 0 degree, or you can call it equator. During the summer, we all are know that land is heat up faster. Land is heat up faster. जो लैंड है वो जल्दी से गर्म होता है. Why? Because its specific heat is less than water. स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि भाई कौन कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टू वार्म, फॉर द वार्मनेस. तो देखो वाटर और लैंड के साथ क्या है कि ये मान लो सपोज दैट कि ये वाटर है और ये है लैंड. सो in both the surfaces insulation is falling down in a same amount, but water is transparent. water जो है transparent होता है. because of this reason water penetrates and reach at the depth of 150 meter. 150 मीटर, 150 मीटर तक वाटर पेनिट्रेट कर जाता है. एंड वी ऑल आर नो दैट कि वाटर इज अ मोबाइल इन नेचर. वाटर कैसा होता है? मोबाइल इन नेचर होता है. और लैंड क्या है? स्टैटिक है, ए मोबाइल है, कहीं मूव नहीं करता. एंड इंसुलेशन ओनली पेनिट्रेट 5 मीटर इन दी लैंड. तो इससे क्या पता चला भाई कि लैंड पे 5 मीटर तक ही जा रहा है. तो 5 मीटर तो बहुत जल्दी वार्म हो जाएगा. और जो वाटर है इट टेक्स 150 मीटर, तो इट विल वाटर टेक्स टाइम टू वार्म अप. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं छोटे से एग्जांपल से कि वाटर जो है ज्यादा टाइम लेता है वार्मनेस में, और लैंड जो है वो बहुत कम टाइम लेता है. इज इट ओके? नाउ so during the summer in the northern hemisphere, because India is in the northern hemisphere, during the summer in the northern hemisphere, during the summer, whenever we are using the term during the summer, it means we are talking about June, we are talking about July, etc. and you can call it we are talking about May. हम लोग बात कर रहे हैं मई जून जुलाई के. ड्यूरिंग द समर लैंड इज हीट अप. व्हेन लैंड इज हीट अप इट डेवलप्स लो प्रेशर. तो भाई अब ये लो प्रेशर क्यों बना रहा है जरा समझो. तो कह रहे हैं कि इधर देखो, सपोज दैट इट इज अ सरफेस. ये एक सरफेस है. व्हेन द इंसुलेशन फॉल डाउन ऑन द सरफेस, व्हाट इज द मींस ऑफ इंसुलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से रेडिएशन आ रहा है उसी को इंसुलेशन बोल रहे हैं. तो in any surface when the insulation fall down on the surface, what will happen? This surface has to warm. जैसे जैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये वार्म हो जाएगा. तो जैसे ही सरफेस वार्म होगा, द एयर विच लाइज ओवर द सरफेस, जो एयर उसके ऊपर लाइज है या उसके ऊपर सराउंडिंग में है, द एयर विच लाइज ओवर द सरफेस इट्स आल्सो गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द
कंडक्शन, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन और कंडक्शन के मेथड से वार्म हो जाएगा एयर। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड, एयर एक्सपेंडेड, पहले एयर फैलता है और फिर एयर राइज अप। तो जैसे ही यहाँ पे सन का इंसुलेशन गिरा, ये हीटअप हुआ, एयर के मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी आई और एयर के मॉलिक्यूल्स हीटअप हुए पहले और एक्सपेंड किया और ये देखो राइज अप कर गए। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो एयर था बिफोर द इंसुलेशन, यहाँ पर जो एयर था वो स्टैटिक था और जैसे ही इंसुलेशन मिला ये एयर के मॉलिक्यूल्स एंड मोबाइल इन नेचर हुए, वार्म हुए, टेम्परेचर मिला, गर्म हुए और गर्म होकर के ये हवा, ये जो एयर है ये अपलिफ्ट कर गई, ऊपर चली गई। तो सारा प्रेशर जो पहले यहाँ पर देखो इस कंडीशन में हाई प्रेशर था, यहाँ पे जैसे इंसुलेशन मिला एयर राइज अप, तो सारा यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर। आई होप कि दिस लिटिल बिट कॉन्सेप्ट गिव यू सो मच कॉन्फिडेंस कि हमें कैसे छोटी छोटी बातें समझनी है और वो छोटी छोटी बातें हमें एक बड़ी बात को समझाने में आसानी करेंगे। ओके, नाउ वी आर अगेन कम टू द पॉइंट। क्या है भाई, जरा देखो, कह रहा है ड्यूरिंग द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंडियन लैंड मास, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट is over in the Indian subcontinent, over the Indian subcontinent there is a development of low pressure। यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ है। और एक और बात I want to add here, हम एक बात और ऐड करते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन द जनरल you can say that the general or the in the general system, yes, in a general form, in a generally or in the normal manner। जैसे कि इधर देखो, अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, अगर मान लो कहीं पे टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो अभी तुम्हें समझाया था। ठीक, ओके। Now during the summer what will happen, during the summer land is heat up faster and it develops low pressure। it means कि यहाँ पे जो भी एयर है वो कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में, वर्टिकल एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक, एंड हियर इट इज अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, और हियर इज अ बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। और ये क्या है भाई कि ये क्या कह रहे हैं कि मानसून इज अ प्रोग्रेसिव विंड। तो वाटर जो है वो लैंड के कंपेयर में जल्दी गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने का मतलब है कि वो ज्यादा जूल एनर्जी को यू कैन से दैट कि स्पेंड कर रहा है, फिर वार्म हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, सन रेज 150 मीटर तक पेनिट्रेट कर जाता है और लैंड पे सिर्फ 5 मीटर तक। ओके, अरेबियन सी, अरेबियन सी में हाई प्रेशर और इधर भी हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर। तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये देखो, ये विंड ऐसे मूव कर गई, ऐसे मूव कर जाएगी विंड। इसी को बोल रहे हैं कि देखो समर में ऐसा सिस्टम है और विंटर में क्या हो रहा है। देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग द विंटर्स व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द winters, what will happen during the winters। during the winters this is 0 degree। again during the winters what will happen, we all are know that during the winters whenever we are using the term winter it means we are talking about November, we are talking about December, we are talking about Jan, we are talking about Feb। ठीक, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई कि लैंड क्या है, लैंड एज फास्टर वार्मर, एज फास्टर कूलर, क्योंकि 5 मीटर तक ही हो रहा था तो जल्दी से ठंडा भी हो गया। ठंडा हो गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। वाटर ग्रेजुअली वार्मर, ग्रेजुअली कूलर, तो ये क्या बना लेगा, लो प्रेशर। इधर भी क्या बनेगा,
low pressure. So wind is always moving from high pressure to low pressure. Winds are always moving from high pressure to low pressure. From high pressure to low pressure. देखो विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है. तो क्या पता चला कि समर में ये विंड जो था, देखो इसका डायरेक्शन किधर था, फ्रॉम लैंड टू सी, और विंटर में इसका डायरेक्शन क्या हो गया, सी टू, इसका डायरेक्शन हुआ लैंड टू सी, और इधर विंटर में क्या, समर में क्या है, सी टू लैंड. इसका मतलब क्या पता चला हमको, एक बात यहाँ पता चली, क्या पता चली जरा देखो भाई, कि monsoon is a progressive wind which behaves like a land bridge and sea bridge. Land bridge and sea bridge. Okay. तो फर्स्टली वी हैव डन विद, हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मानसून वर्ड जो है वो ऋग्वेदास में मेंशन है, पर एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें ना. फिर हमने देखा क्या कि इट इज अ अरेबिक वर्ड. अरब एक्सप्लोरर जो थे, अरब ट्रेडर जो थे, उनको मानसून के बारे में ज्यादा पता था. अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन, एंड हियर वी डिस्कस कि मानसून इज अ प्रोग्रेसिव विंड. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, विच चेंज इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन. विंड क्या होती है, तो एयर का एक फॉर्म होता है, एयर वर्टिकल मूव करती है, विंड हॉरिजॉन्टल मूव करता है, और मानसून is a progressive wind which behaves like a land bridge and sea bridge. I hope that will clear. Now again we are back to the synopsis, factors affecting the monsoon and controlling the monsoon. Okay, now we are going to discuss the factors which are controlling the monsoon. The first factor which controls is a latitude. Why it is called latitude? We all are know that कि suppose that this is our earth and this is 0 degree. I presume that, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब बेसिक बातें पता होंगी. And this is called Tropic of Cancer, 23.5 degree northern, and this is called Tropic of Capricorn, 23.5 degree southern. What will happen? We all are know that कि Earth is tilted 23.5 degree on its axis. Earth जो है 23.5 degree अपने axis पे tilted है, because of tiltness and with a same inclination. एक ही तरफ जिस तरफ tilted है उसी तरफ से Earth जो है sun के around जो है move कर रहा है, and because of the Earth change its position around the sun, the season change. Okay, तो क्या पता चल रहा है हमको भाई कि सन वर्टिकल सन रेज इज फॉलिंग डाउन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके बीच में सन मूव करता रहता है, और इसी मूवमेंट से ही हमें सीजन पता चलता है. देखो, सन फॉलिंग डाउन ऑन 0 डिग्री ऑन 23rd मार्च. 23rd मार्च फिर सन मूव कर रहा है किधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ. एंड ऑन 21st जून सन rays directly fall down, apparent movement of sun rays directly fall down on the tropic of cancer. अब वहां से फिर मूव करेगा, यहां आएगा, और ये होगा 23rd सितंबर. ये 21st मार्च हो गया, और ये हो गया 23rd सितंबर. एंड आफ्टर दैट अगेन सन मूव्स इन सन रेज. मैं बार बार सन बोल रहा हूँ, इसका मतलब सन मूव नहीं कर रहा है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन रेज है. एपरेंट मूवमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सन मूवमेंट कर रहा है, बट मूव कौन कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है. ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न पे आया, और द सन रेज फॉलिंग डाउन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22nd of December. 22nd of December. ओके, नाउ तो हमें क्या पता चला कि भाई सन रेज का जो एपरेंट मूवमेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कभी कभी हो रहा है ना, इन 1 ईयर ऑफ साइकिल. तो लैटिट्यूड भी क्या करता है, मॉनसून को इंपैक्ट करता है. कैसे? विथ
द एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। सपोज दैट कि ये देखो भाई सब लोग, ये है इक्वेटर, अब सन रेज ग्रेजुअली मूव कर रहा है इधर इधर इधर, तो जैसे जैसे वो इंडिया की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे इंडिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, लैंड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वाटर का भी। पर आपको पता है कि दोनों के नेचर और सरफेस के नेचर में डिफरेंस है, इस वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होगी, लैंड ज्यादा टेम्परेचर होगा और वाटर का कंपेयर में कम टेम्परेचर होगा, वाटर का टेम्परेचर कम। ये जैसे जैसे मूव करता जाएगा 23.5 डिग्री तक जाएगा वर्टिकली। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपवर्ड लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर लैटिट्यूड से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथवर्ड जाएंगे तो इसका मतलब है टेम्परेचर डाउन होगा। देखो लैटिट्यूड भी एक फैक्टर है। ओके, नाउ आई होप दैट विल क्लियर। सो again we are going to discuss the next factor which controls the second factor which controls the monsoon. The second factor is distance from sea. It is very simple. Suppose that this is called Indian Peninsula. अब इंडियन पेनिनसुला है, अगर मान लो कोई यहाँ से रेन बियरिंग बैंड, कोई लैडन ऑफ रेन बियरिंग बैंड्स, कोई रेन बियरिंग बैंड जा रहा है और इसके पास मॉइस्चर है, खूब सारा वाटर है रेनफॉल के लिए, तो जैसे ही टकराएगा वैसे यहाँ सारा रेनफॉल कर देगा। फिर जैसे ही इंटीरियर पार्ट में जाएगा तो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगा, गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कोस्टल एरिया में है दे ऑलवेज रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनफॉल, और जो भी इंटीरियर पार्ट में होगा दे रिसीविंग द लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इज इट ओके? ओके, द थर्ड फैक्टर इज shifting of ITCZ. What is the means of ITCZ? It is very simple. क्या है इसका मतलब, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर का मतलब क्या होता है भाई, द विंड विच कम फ्रॉम डिफरेंट एरिया, डिफरेंट है, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, नेचर तो ट्रॉपिकल ही है पर इंटर है, मतलब अलग अलग जगह से आ रही है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है भाई, मीटिंग। जोन का मतलब क्या है, किसी एरिया में। तो क्या कह रहे हैं कि एक डिफरेंट, और ये क्या है, ट्रॉपिकल का मतलब कम फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्दर्न एज वेल एज सदर्न, ट्रॉपिकल है, इक्वेटोरियल नहीं है। इक्वेटोरियल का मतलब होता है 0 to 10 डिग्री, ट्रॉपिकल का मतलब होता है 10 से 30 डिग्री। ओके, तो कह रहे हैं कि एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है जहां पर एक विंड मिल रही है जो डिफरेंट रीजन से आ रही है पर ट्रॉपिकल नेचर में, मतलब इसका नेचर सेम है। कन्वर्जेंस का मतलब मीट करेगा, जोन का मतलब एरिया है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इसका मतलब है कि सपोज दैट कि अगर हम आपको एग्जांपल से समझाएं तो ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेड विंड ऑफ द सदर्न एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रेड विंड ऑफ नॉर्दर्न। तो देखो बोथ आर ट्रॉपिकल इन नेचर, ये भी ट्रॉपिकल है, बोथ आर ट्रॉपिकल इन नेचर। देखो ये ट्रॉपिकल है, जिस एरिया में मिल रहे हैं इसको कन्वर्जेंस जोन बोल रहे हैं, और इंटर है क्योंकि ये सदर्न से आ रही है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये हुआ जोन ITCZ का, ITCZ। आई होप कि दैट विल क्लियर शिफ्टिंग ऑफ द ITCZ। Okay, now the fourth factor is Himalayas. Himalayas is also controlling the amount of rainfall. क्यों? क्योंकि हिमालय कैसा है, ये act as a
एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर, हिमालय क्या करता है, एक्ट एज अ बैरियर। लेट मी शो यू इन द फिगर कि सपोज दैट कि कोई विंड जो है, ध्यान से सुनना भाई, कोई विंड जो है ऐसे इंडिया में जा रही है, तो ये देखो आर्क शेप में, आर्क्यूट शेप में या आर्क शेप में ये है। तो जो भी रेन बियरिंग बैंड विच ट्राई टू pass over the Indian subcontinent and try to enter into the China, the Himalayan act as a barrier which influence the climatic condition of the India, जो कि इंडिया के climatic condition को कंट्रोल करता है। It is very prominent feature, ये बहुत important feature है। Okay, now the fifth one is relief features. What is the means of relief feature? In a very simple word, क्या मतलब होता है रिलीफ का? रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई माउंटेन है, ये कोई वैली है, तो ये हम टॉप मोस्ट हाइट एंड लोवेस्ट एरिया लेते हैं, तो उसके बीच का जो एवरेज प्लेन आता है उसी को रिलीफ फीचर बोलते हैं। जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे वैली है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटू है, तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, तो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट भी होगा। ठीक, तो ये है रिलीफ फीचर। फोर्थ वन क्या है, fifth and sixth one is the distance from the sea. I have mentioned it, latitude, distance from sea, shifting of IT says at Himalayas, and sixth one is Tibetan plateau, heating of the Tibetan plateau, Tibetan plateau, Tibetan plateau. Seventh one is a jet stream. Eighth one is, there are so many things but there is a no need to understand in a primary level, बहुत प्राइमरी लेवल पे हमें ये सब समझने की जरूरत नहीं है। तिब्बतन प्लेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू मेंशन, हमने मेंशन कर दिया तिब्बतन प्लेटो को। ओके, तिब्बतन प्लेटो। ओके, नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ तिब्बतन प्लेटो? देखो भाई क्या होता है इम्पैक्ट तिब्बतन प्लेटो का। तिब्बतन प्लेटो इज अ वेरी लार्ज प्लेटो। पहले तो साइज में बहुत बड़ा है, दूसरी चीज हाइट में बहुत ज्यादा है। तो हाइट में ज्यादा है, सबसे पहले इंसुलेशन उसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा वार्म हो जाएगा, तो वो भी वार्म होकर के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में आकर के मानसून को कंट्रोल करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द मानसून। ओके, नाउ आई होप कि ये बेसिक बातें हम लोगों ने समझ ली होंगी। ये बहुत बेसिक बात है ना। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने थ्योरी को कि मानसून होता क्या है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ थ्योरी, बट टुडे I am going to discuss only one theory which is known as classical. Classical theory. Classical की जगह I want to mention the thermal theory. Thermal थर्मल थ्योरी। थर्मल थ्योरी, थर्मल थ्योरी का मतलब क्या होता है भाई? मतलब ये नाम में ही बता रहा है कि कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है। दिया किसने है? हैली, हैली साहब ने दिया है ना। एक साइंटिस्ट है हैली, 16th सेंचुरी बीसी में या मिड 17th सेंचुरी बोल सकते हैं ना, मिड ऑफ द 17th सेंचुरी। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि मानसून इज नथिंग, मानसून इज नथिंग, it is originate because of differential, because of differential heating and cooling of land
एंड सी। क्या बता रहे हैं देखो, ये कह रहे हैं कि मानसून कुछ नहीं है, इट इज ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन में जो लैंड एंड वाटर बॉडी है वो अलग अलग टाइम पे ठंडा और गर्म हो रहा है, उसी को कह रहे हैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी इज कॉल्ड is called monsoon, is called monsoon. Okay, now with the example समझाते हैं कि देखो इन्होंने क्या कहा, ड्यूरिंग द समर, ये क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द समर, what will happen during the summer? During the summer, according to the Halley said that during the summer, Indian subcontinent, Indian subcontinent, what is the means of Indian subcontinent? क्या मतलब होता है Indian subcontinent? Whenever we are using the Indian subcontinent, it means we are not only talking about India, we are talking about Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, as well as Sri Lanka and Maldives. ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब है, कल्चर और पॉलिटिकल टर्म में से हम यूज करते हैं ना इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द समर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज heating, Indian subcontinent is heating because of northern shifting of sun apparent या sun rays, northern shifting of sun rays। तो क्या बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द समर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज हीटिंग बिकॉज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्टिंग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ हेमिस्फीयर भी कर लेते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्टिंग ऑफ द सन रेज। and if the shifting of sun rays, we all are know that कि land is faster warmer and it develops low pressure and water is comparatively, वाटर जो है पानी जो है वाटर जो है जल्दी से गर्म नहीं होता क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो वाटर is not warmer compared to the land, so it develops high pressure. So it is all about the differential heating। तो ये देखो भाई सब लोग, ये हमने बनाया, ये हमारा आ गया, ये हमने आपको ये हमारा ये आप इंडिया को देखो और ये सारे वाटर बॉडी है, हियर इज अरेबियन सी एंड हियर इज बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ये कौन सा पीरियड चल रहा है, समर। तो दिस लैंड थार डेजर्ट एंड द प्लेटू रीजन इज टू मच हीट अप and it develops low pressure and this water develops high pressure, so the winds are moving from sea to land and this is all about the thermal concept,
कॉन्सेप्ट। ठीक, ये देखो थर्मल कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ ड्यूरिंग द विंटर, अकॉर्डिंग टू द थर्मल कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द विंटर क्या हो रहा है भाई, सब लोग ध्यान से देखो। ड्यूरिंग द विंटर ऑल द कंडीशन गेट्स रिवर्स, जो सब कुछ उस समय लैंड पे हो रहा था वो उल्टा हो जाएगा। तो देखो फिर से, फिर बना नहीं रहा हूं, तो छोटे से फिगर में आपको समझा रहा हूं। किधर देखो, लैंड में विंटर में क्या होगा, apparent movement of, apparent movement of sun's rays, apparent movement of sun rays in the southern hemisphere, southern hemisphere में चला गया। अब southern hemisphere में चला गया तो क्या है भाई, जरा देखो, ये 0 डिग्री southern hemisphere में चला गया तो land is heat up faster and cooled up faster, तो cooled up हुआ तो land ने क्या बना लिया, हाई प्रेशर। बट वाटर उसके कंपेयर में अभी भी क्या रहेगा, वार्म रहेगा। तो इट कंपैरेटिवली वाटर इज वार्मर एंड इट डेवलप्स लो प्रेशर। ठीक, सो विंड्स आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो winds are moving from high pressure to low pressure। यहां से जो भी विंड होंगे सब ऐसे आएंगे, इधर से जो भी विंड होगा, इधर से जो भी विंड होगा, सब जाएगा। देखो भाई सब लोग, तो ये इट्स ऑल अबाउट, बट इट इज ओनली द हाफ ऑफ द ट्रूथ ऑफ मानसून। ये केवल हाफ ऑफ द ट्रूथ ऑफ मानसून है। मानसून के लिए मेन चीज समझने के लिए हमें जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। सो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वी विल टॉक अबाउट in the next video session. Thank you and continuous watching us and subscribe us. Thank you.